Good morning, students. Welcome back to science class of 7th after your periodic test exams. Okay, so in our previous video, we took the revision of the periodic test chapters. ठीक है? And before that, we were studying physical and chemical changes. Physical and chemical changes was your activity test that you have studied. Now we are going to study chapter 3, that is fiber to fabric, that is your subject enrichment chapter. ठीक है, ये आपके periodic test में include नहीं होगा but this you have to study. Okay, so we will take a short revision of this chapter. So the name of the chapter is fiber to fabric. Fiber means thread. ठीक है, thread to fabric means clothes. So natural fibers are threads obtained from plants and animals. We know there are two types of fibers, natural as well as artificial. Here we are talking about natural fiber, so they are obtained from plants and animals. In class 6 we have learned that some fibers obtained from plants which are used to make fabric or cloth. For example, cotton plant give us cotton fibers which are used for making cotton fabrics. तो हमें पता है कि natural fibers कि दो सोर्सेस हैं, वो क्या क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है कॉटन, लिनन, जूट, फ्लैक्स एट्सेट्रा. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड हेंस कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. एंड इन दिस क्लास we will study about the animal fibers. ठीक, the two important animal fibers are wool and silk. Wool is obtained from sheep and silk is obtained from silkworm. ठीक, wool comes from animals such as sheep, goat and yak, whereas silk comes from silkworms. So wool and silk are animal fiber. तो ये natural fiber भी है as well as they are animal fiber. Wool is used for knitting sweaters and making शॉल्स एंड अदर वुलन क्लॉथ. तो वुल का यूज़ हम क्या करते हैं, फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स एंड वुलन क्लॉथ. एंड सिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज़ एंड अदर ड्रेसेस. जो सिल्क है बहुत लश्चरस मटेरियल है, फैब्रिक, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली और इट इज़ used for making sarees and other dresses. We will now discuss the production of wool and silk in detail. ठीक है, now let us start with wool. What is wool? Wool is the most commonly used animal fiber. Everybody use wool. We also use woolen clothes in winter, right? Wool is the soft wavy hair which covers the body of a sheep. आपने देखा होगा sheep को closely observe किया होगा कि उनके body में ये जो wool होता है वो hair like structure होता है जो बहुत curly wavy होता है. Actually wool is a modified form of hair that grows with a waviness. तो हम कह सकते हैं कि wool एक तरह का क्या है, हेयर ग्रोथ है. जैसे हमारे बॉडी पे हेयर ग्रोथ होता है वैसे ही sheep के बॉडी पे भी हेयर ग्रोथ होता है, लेकिन उनमें क्या थोड़ा मॉडिफिकेशन चेंज होता है, वो थोड़े वेवी होते हैं, कर्ली स्ट्रक्चर के होते हैं. Because of the waviness of wool, the woolen fabrics have a greater bulk. और जो इनका waviness कर्लीपन होता है उसके कारण जो woolen fabrics होते हैं वो क्या होते हैं, बल्की होते हैं, भारी होते हैं as compared to cotton fabrics, and that's why they trap more air. Due to this, woolen fabrics keep us more warm during cold winter days, and that's why we wear woolen clothes in winter to keep our body warm. Wool comes from sheep. ठीक, actually wool is obtained from the fleece of sheep. Okay, sheep grow wool on their body and once a year this wool is sheared. ठीक है, तो ये जो wool होता है वो sheep के body पे grow करता है और साल में एक बार उस wool को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, we remove it, and that process is called as shearing, taking out of wool. Though wool comes mainly from the sheep, some other animals also give us wool. ठीक, तो हम तो जानते हैं कि wool हमें मेनली शिप से मिलता है, लेकिन कई ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें wool प्रोवाइड करते हैं. वो ऐसे एनिमल्स हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. Animals that yield wool. Wool comes from the animals like sheep, goat, yak, camel, llama and alpaca. ठीक, in other words the wool yielding animals are sheep, goat, yak, camel
ललामा एंड एल्पका। ठीक, आप फिगर में अभी देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। द वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक, तो जो ये वुल यील्डिंग एनिमल्स जो हैं उनके बॉडी पे ये थिक हेयर होता है, एक कोट की तरह। इट इज़ द हेयर विच गिव्स अस वुल, ये वही हेयर है जिससे कि हमें वुल मिलता है। एक्चुअली द वुल यील्डिंग animals have a thick coat of hair on their body to keep them warm during the cold winter season। तो ये जो हेयर होता है वुल यील्डिंग एनिमल्स के बॉडी के ऊपर, ये क्या करता है, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है जो उनके बॉडी को गर्म करता है विंटर सीजन में, राइट। द हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, जो ये हेयर होते हैं ये एयर को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं, होल्ड करते हैं। And we all know that air is a poor conductor of heat. What is poor conductor or insulator? The substance which do not allow heat or electricity to pass through it. ठीक है, so the air trapped in hair of these animals prevent their body heat from being lost to cold surroundings and keep them warm in winter। तो हम जानते हैं कि एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये क्या करता है, जो वुल के हेयर्स रहते हैं जो इनके बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं और बॉडी की जो हीट रहती है उसको बाहर सराउंडिंग्स में लूज़ नहीं होने देते और हमारा बॉडी क्या होता है, हीट रहता है। दिस इज़ वाई द हेयर ऑफ दिस एनिमल्स इज़ रिमूव्ड ओनली वंस इन ए ईयर एट द बिगनिंग ऑफ समर सीजन। इसलिए जो हम शेयरिंग का प्रोसेस करते हैं दैट इज़ टेकिंग आउट ऑफ हेयर और फ्लीस, वो साल में एक बार होता है और वो कब होता है, बिगनिंग ऑफ द समर सीजन। दे कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर विदाउट हेयर। ठीक, और क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि समर सीजन में वो बिना हेयर के रह सकते हैं, बट इन विंटर सीजन इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ नॉट possible them for to survive, and by the time winter comes the thick hair grows again on the body of these animals। और विंटर आते आते इनके बॉडी पे अगेन क्या हो जाता है, वो हेयर ग्रो कर जाता है। ठीक, wool is mostly obtained from sheep। Sheep are reared in many parts of India for getting wool। ठीक, the names of some of breeds of sheep are reared in our country for obtaining wool, the quality of wool obtained and name of states where these sheep are found। ठीक है, तो जो वुल की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कैसे शीप से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, और कैसा उनका रियरिंग हो रहा है। The hairy skin of sheep has two types of fibers that form its fleece। ठीक है, तो जो hairy skin होता है sheep का उसमें दो तरह के fibers होते हैं। First one is fleece and the coarse beard hair and the second one is the fine one। ठीक, coarse मतलब rough and fine मतलब जो smooth रहता है which is very close to the skin। The fine hair provide fibers for making wool। जो fine hair obtain होता है हमें sheep से that is used for making wool। Some breeds of sheep possess only fine under hair। और कुछ ऐसे ब्रीड होते हैं शीप के जिनमें सिर्फ फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। देयर पेरेंट शीप आर स्पेशली चोजन सो एज टू गिव बर्थ टू शेप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इसमें हम ब्रीडिंग के द्वारा ऐसे पेरेंट्स चूज़ करते हैं जिनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, उनकी खूब फाइनली हेयर होंगे। ठीक, The process of selecting parent sheep for obtaining special characteristics in their offspring is called selective breeding। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पसंद के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को सेलेक्ट करके अपने अनुरूप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग चाहते हैं, वैसे टाइप को हम कहेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक, द नेचुरल कलर ऑफ वूल इज़ जनरली क्रीमी वाइट, दो some breeds of sheep produce wool having brown and black colors। तो नेचुरल कलर जनरली क्या होता है, क्रीमी वाइट होता है, आपने देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं जो कि ब्राउन और ब्लैक कलर के। These are some wool yielding animals like angora goat, yak, camel, alpaca and llama। These all are wool giving animals। Okay, के भी बाल होते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक ऑल्सो। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। तो जो हमारा वुल होता है वो गोट हेयर से भी ऑब्टेन होता है।
द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती है उनके जो फर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वोवन इन टू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल. और अगर हम कश्मीर विजिट करेंगे तो वहाँ का पश्मीना शॉल बहुत क्या है, फेमस है. दैट इज़ मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट. अंगोरा wool is obtained from angora goats which are found in the hilly regions such as Jammu and Kashmir. Yaks have thick and long hair on their body which yield wool. Yak wool is commonly found in the hilly regions of Tibet and लद्दाख. तो अगर हम देखेंगे शिप है, गोट है, याक है, इन सब से हमें क्या मिलता है, वुल मिलता है. द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वुल. जो बॉडी कैमल के हेयर पे होता है वो भी क्या होता है, वूल के टाइप में यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक. द एनिमल्स कॉल्ड ललामा एंड एल्पका विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका हैव द हेयर ऑन द बॉडी विच आर प्रोसेस्ड इनटू यील्ड वूल. और ये जो ललामा और एल्पका है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता. देयर हेयर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल. Please note that though the hair on the body of the animal such as sheep, goat and yak constitute wool, but in everyday language wool means the processed wool, which is the wool yarn for making sweaters or making shawls. तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये वूल होता है, जैसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि जो हेयर होता है वो शीप, गोट और याक पे पाया जाता है, लेकिन अगर टेक्निकल वे में बोलेंगे तो वो प्रोसेस्ड वूल होता है, यानी कि वूल यार्न होता है, धागा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्वेटर बनाने के लिए या शॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक. नाउ वी विल स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ वूल, हाउ वूल इज़ प्रोड्यूस्ड. Wool comes mainly from sheep. In order to obtain wool, sheep are reared and bred. Their hair is cut and processed into wool. तो wool जो है हमें शीप से मिलता है और उसके लिए हम उसकी रेयरिंग करते हैं, उसकी ब्रीडिंग करते हैं और फिर उनके हेयर को कट करते हैं, जिसको फाइनली हम वूल में बनाते हैं. वी विल फर्स्ट डिस्कस द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. ठीक. एंड देन डिस्क्राइब हाउ द शीप हेयर आर कट एंड प्रोसेस टू मेक वूल. ठीक. तो हम पहले क्या करेंगे, रेयरिंग और ब्रीडिंग पढ़ेंगे शीप का. Rearing and breeding of sheep. Rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food, shelter and health care. Rearing मतलब देखभाल. देखभाल में हम क्या करते हैं, किसी को खाना देते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं और उनकी हेल्थ केयर को. तो rearing is the means of providing food, shelter and health care to the sheep. ठीक. The person who look after the sheep are called rearers or shepherds. और जो उनकी देखभाल करते हैं, जो उनको रेयर करते हैं, उनको हम शेफर्ड, चरवाहा कहते हैं, है ना, गडेरिया जिसको. Sheep are herbivores and prefer to eat grass and leaves. हमें पता है sheep क्या है, herbivorous animals है. So shepherds take the herds of sheep to countryside for grazing. और आपने देखा भी होगा कि sheep का क्या होता है, पूरा झुंड, फ्लॉक जो होता है वो shepherd लेके जाते हैं चराने के लिए. Apart from grazing grass, the sheep are also fed mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes एंड मिनरल्स. और ग्रास के अलावा उन्हें पल्सेस दिए जाते हैं, ज्वार दिए जाते हैं और कई सारे फूड स्टफ्स दिए जाते हैं. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर. और विंटर में हम शीप को क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, शेड में रखते हैं और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर, फॉडर मीन्स चारा, फूड फॉर एनिमल्स. ठीक. Certain breeds of sheep have a thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कुछ ऐसे sheep के breed हैं जो बहुत ज़्यादा wool देते हैं large quantity में. These are called sheep of good breeds. और ऐसे sheep को हम good breed कहते हैं. Such sheep are selective bred by choosing at least one parent sheep of good breed. और ऐसे sheep हमें कैसे मिलते हैं, by selective breeding. So the breeding of sheep is done to obtain such breeds of sheep which yield good quality wool in large quantities. This raises the quality and quantity of wool produced. तो हम ऐसे sheep को सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें क्वालिटी भी अच्छी मिले वूल की और क्वांटिटी भी अच्छी मिले. ठीक. Once the reared sheep have developed a thick coat of hair, the hair is cut off for cutting wool. ठीक. अब रेयरिंग हो गया, उनको खाना दे दिया गया, शेल्टर दे दिया गया, अब उनका क्या होगा,
वुल का रिमूवल होगा, कटिंग ऑफ वुल। द कट ऑफ वुल ऑफ ए शिप इज़ कॉल्ड फ्लीस। जो वुल हम कट करते हैं शीप की बॉडी से उसे हम कहते हैं फ्लीस। द फ्लीस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वुलन फाइबर्स। ठीक है, और ये जो फ्लीस होता है वो वुलन फाइबर्स का बना होता है। नाउ हाउ वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शिप। अब हम वुल को कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं, मेनली 6 स्टेप्स होते हैं जिसे हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन डिटेल। द yarn विच वी यूज़ फॉर knitting sweaters or making shawls is called wool. Wool is obtained from the ship by a long process which involves the following steps. तो वुल का एक लंबा प्रोसेस होता है, वो क्या है? पहला है शेयरिंग, सेकेंड स्काउरिंग, थर्ड शॉर्टिंग, फोर्थ डाइंग, फिफ्थ कॉम्बिंग एंड सिक्स्थ वन इज spinning. Now we will discuss in detail one by one. First is shearing. What is shearing? The hair of sheep along with a thin layer of skin are removed from the body of sheep. The process of removing hair from the body of a sheep in the form of fleece is called shearing. What is shearing? The removing of hair from the body of sheep is called shearing. The hair of a sheep are cut off by using a machine called दैट इज़ यूज्ड बाय बार्बर्स। ठीक है, जैसे बार्बर्स यूज़ करते हैं मशीन ट्रिमर के रूप में, वैसे ही शेयरिंग के लिए भी मशीन यूज़ किया जाता है। द हेयरी स्किन ऑफ शिप इज़ रिमूव्ड इन वन पीस एंड इट इज़ कॉल्ड फ्लीस। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ Then the second step is scouring. The fleece of sheep contains dust, dried sweat and grease, so the fleece must be cleaned before it is processed into wool yarn. The fleece of sheep is thoroughly cleaned by washing with soap, detergent and a lot of water in a tank. So what is scouring? Scouring is removing the impurities from the fleece. ठीक है, now third step is sorting. Sorting मतलब छटाई. The wool is not uniform in the all parts of sheep. ठीक, some parts of fleece have fine wool fibers while others have coarse wool fibers. ठीक है, तो हमें अलग अलग फाइबर्स को सेपरेट करना होता है उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग. देन फोर्थ स्टेप इज़ डाइंग. डाइंग मतलब कलर करना. द नेचुरल फ्लीस ऑफ हेयर ऑफ शीप इज़ वाइट, ब्राउन और ब्लैक इन कलर, हमने पढ़ा था. द वाइट वुलन फाइबर्स ऑब्टेन बाय सॉर्टिंग कैन बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स. और जो वाइट वुल हमें ऑब्टेन होता है हम उसको डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं. देन फिफ्थ वन इज़ कॉम्बिंग. कॉम्बिंग मतलब जो इंटैंगल हो गए फाइबर्स उनको सीधा करना. कॉम्बिंग इज़ ए मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द यार्न. तो कॉम्बिंग एक मेथड है जिसमें हम वुलन फाइबर्स को यार्न के रूप में स्पिन करेंगे. दिस इज़ डन बाय यूजिंग कॉम्स हैविंग मेटल टीथ. ये आपके फैक्ट्रीज़ में होते हैं, मेटल के टीथ होते हैं जिसमें वुल फाइबर को कॉम किया जाता है, उनको इंटैंगल किया जाता है. ठीक, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग स्ट्रेटन्स द इंटैंगल्ड वुलन फाइबर एंड ऑल्सो रिमूव्स द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स विच मे बी कॉट इन देम. और फिफ्थ वन जब कॉम्बिंग हो जाती है तो फिर लास्ट वन है स्पिनिंग. स्पिनिंग मतलब घुमा घुमा के गोला बनाना. द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पिन इनटू थिक यार्न कॉल्ड वुल. ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हो गए. फर्स्ट वन इज़ शेयरिंग, ठीक है, सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग. दीज आर ऑल प्रोसेस अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ वुल. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द सिल्क. सो this is all about today, so read it thoroughly and whatever doubt is there you can ask me. Okay, thank you and have a great day.